أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علم۔ آج ہم مد کا ریویژن کریں گے۔ مد جو ہوتا ہے وہ اصل میں دیکھا جائے تو دو ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مد اصلی اور دوسرا ہوتا ہے مد فرعی۔ تو مد اصلی ہم پڑھ چکے، جیسے الف مد، واو مد، یا مد اور کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش یعنی اسٹینڈنگ فتح، اسٹینڈنگ کسرہ، انورٹڈ دمہ۔ مد فرعی جو ہوتی ہیں وہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو حمزہ آیا ہوا ہوگا یا تو سکون آیا ہوگا، یعنی الف مد، واو مد، یا مد جو مد طبعی ہیں اس کے بعد یا تو حمزہ آئی بھی ہوگی یا تو سکون آیا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ مد فرعی کا رول بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حمزہ کے بارے میں، یعنی اگر حروف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر اس کے الگ الگ کیٹیگریز بنیں گی۔ ایک تو ہے مد متصل واجب اور دوسرا ہے مد منفصل جائز۔ مد متصل واجب کیا ہے؟ مد متصل واجب اس وقت ہوگا جب کسی کلمے میں حروف مد کے بعد حمزہ آئے اور یہ جو حروف مد اور حمزہ جو ہے وہ ایک ہی کلمے کے اندر ہو، یعنی متصل کا مطلب کیا ہے؟ سل یعنی جوائنٹ، اٹیچ، اسی لیے تو انگلش میں اس کو اٹیچ مد کہا جاتا ہے۔ متصل یعنی اٹیچ، جوائنٹ جو ہوتا ہے ایک ہی کلمے کے اندر اگر حروف مد کے بعد الف مد، واو مد یا مد کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر مد متصل واجب ہوگا۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ اس کی جو حرکات ہوں گی اس کو اسٹریچ کر کے کھینچ کے جو پڑھنا ہوگا وہ اس کے آپشن دیے ہوئے ہیں، یا تو آپ 4 کاؤنٹ کھینچے یا 5 کاؤنٹ کھینچے، لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ 5 کاؤنٹ اس کو کھینچیں۔ مد منفصل جائز میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی یہی رول آتا ہے کہ حروف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر یہ رول بنے گا، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ الگ الگ کلمات میں ہوگا، یعنی 2 کلمات ہوں گے، پہلا جو کلمہ ہے وہ اینڈ ہو رہا ہوگا حروف مد پر، اور جو سیکنڈ کلمہ ہے دوسرا اس کا نیکسٹ کلمہ ہے وہ اسٹارٹ ہوگا حمزہ کے ساتھ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل جائز کہیں گے۔ تو یہ سیپریٹڈ مد، انگلش والے اس کو کہتے ہیں سیپریٹڈ مد، منفصل فصل سے ہے یعنی سیپریٹڈ، جدا جدا، سیپریشن، تو اسی سے یہ بنا ہوا ہے۔ تو مد منفصل جائز الگ الگ کلمات کے اندر ہوگا، پہلا کلمہ اینڈ ہو رہا ہے حروف مد پہ اور دوسرا کلمہ اسٹارٹ ہو رہا ہے حمزہ پر۔ اس کے جو کاؤنٹنگ بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 2 کاؤنٹ کھینچے، 4 بھی کھینچ سکتے ہیں یا 5 بھی کھینچ سکتے ہیں، لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ اسے 4 اسٹریچ کاؤنٹ کھینچیں، یعنی 4 انگلیاں کھلنے تک کتنا ٹائم لگتا ہے اتنا آپ کھینچیں۔ تو یہ ہو گیا مد منفصل جائز۔ تو حمزہ کی وجہ سے جو مد فرعی بنتی ہیں وہ بیسک کورس میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ 2 ہے، مد متصل واجب ایک ہی کلمے کے اندر، مد منفصل جائز الگ الگ کلمات کے اندر آئے گی۔ تو یہ ہو گیا حمزے کی وجہ سے مد فرعی بننے والا۔ اب مد فرعی کی دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ سکون کی وجہ سے بھی مد فرعی ہو سکتا ہے۔
एक तो एक सुकून आर्जी भी हो सकता है ना, आर्जी तौर पर आपने सुकून दे दिए, टेम्पररी दिए, वहाँ पर सुकून नहीं था लेकिन आप वक़्त करने की वजह से वहाँ साकिन कर रहे हैं, टेम्पररी सुकून दे रहे हैं, या किसी और रीज़न की वजह से आप वहाँ स्टॉप हो गए और आपने खुद उसको लास्ट लेटर को साकिन कर दिया। तो सुकून आर्जी भी हो सकता है या सुकून असली भी हो सकता है, यानी वो हमने सुकून नहीं दिया हुआ बल्कि ओरिजिनल उसके अंदर सुकून है, तो ये वाला सुकून असली में आएगा। तो सुकून में सुकून आर्जी और सुकून असली। सुकून आर्जी जो होती है टेम्पररी सुकून, उसके भी दो कैटेगरी आएंगी। एक तो एक मद्दे आरिद और दूसरा मद्दे लीन आरिद। इसकी हम डिटेल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में। तो मद्दे आरिद में क्या होगा कि अगर किसी कलिमे में हुरूफ मद के बाद कोई हर्फ साकिन हो, यानी साकिन हो और उसका सुकून असली ना हो। मद्दे आरिद में क्या है, असली सुकून नहीं है बल्कि हमने उसको साकिन कर दिया, तो ये जो होगा रूल मद्दे आरिद में आएगा। और इसकी जो काउंटिंग बताई गई है वो 2, 4 या 6 बताई हुई है। आप 2 भी खींच सकते, 4 भी या 6 भी, लेकिन बेटर इसका 6 काउंट खींचना होगा। फिर सुकून आर्जी में दूसरा रूल क्या है, मद्दे लीन आरिद। अब नाम इटसेल्फ आपको बता रहा है लीन का क्या मतलब है। लीन वावलीन और यालीन, आउ आई याद रखें, आरिद आर्जी तौर पर। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर किसी कलीमे में हुरूफ लीन के बाद कोई हर्फ साकिन हो, उसका सुकून जो है वो असली ना हो बल्कि क्या हो गया, हमने वक़्त की स्टॉप करने की वजह से हमने उसको सुकून दे दिए, आर्ज़ी तौर पर दे दिए, जैसे खौफ, सौइफ़ जो हमने देखे थे। तो ये मद्दलीन आरिद का कायदा आएगा। इसमें क्या करना है, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए कि आप 2 काउंट खींचे, 4 काउंट खींचे या 6 काउंट खींचे, लेकिन बेहतर ये है कि आप 2 काउंट इधर खींचे। इसी तरह ये अब सुकून असली, असली सुकून है, ये हमने टेम्पररी दिया हुआ नहीं, आर्ज़ी तौर पे नहीं दिया हुआ बल्कि ओरिजिनल सुकून उसके अंदर है। तो उसमें क्या आएगा, मद्दे लाज़िम और मद्दे लीन लाज़िम। मद्दे लाज़िम में क्या होगा, अगर किसी कलीमे में कोई भी एक कलीमा है उसमें क्या है, एक ही कलीमे के अंदर हुरूफ मद के बाद कोई हर्फ साकिन हो और उसका जो सुकून जो है वो असली सुकून है, वो हमने सुकून नहीं दिया हुआ बल्कि उसका असली, उस वर्ड का असली सुकून है, तो फिर ये मद्दे लाज़िम होगा। और इसके जो काउंटिंग बताए हुए हैं खींचने के, वो है 6 हरकत, 6 काउंट, स्टेज काउंट आपको खींचना होगा। और ये मैक्सिमम आप देखेंगे सभी स्कॉलर ने इस पे इत्तेफ़ाक किया हुआ है कि इसको 6 काउंट खींचा जाए। फिर लास्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है मद्दे लीन लाज़िम, कि अगर किसी कलीमे में हुरूफ लीन के बाद कोई हर्फ साकिन हो और उसका जो सुकून है वो असली हो तो उसे मद्दे लीन लाज़िम कहेंगे। तो ये इसकी मिसाल आप देखिए, पूरे कुरान में सिर्फ 2 ही मिलती हैं। और मैंने कहा था कि सूरह शूरा और सूरह मरियम की पहली आयत में आता है, आइन आया हुआ है ना, आइन सीन कॉफ, ये जो सूरह शूरा में, और काफ हा या आइन सॉद, ये सूरह मरियम में पहली आयत आएगी। तो ये इसके अंदर जो आइन आया हुआ है वही मद्दे लीन लाजिम है। ये पूरे कुरान में बस 2 ही एग्जाम्पल आपको मिलेगी। और इसकी जो काउंटिंग बताई हुई है वो 2, 4 या 6, लेकिन बेटर ये है कि आप 4 काउंट इसको खींचें। एक हमने समराइज़ कर दिया इसको। तो अब आपका काम ये है कि आपने इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको डालनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, तो नीचे आप एरो करके और एक रेक्टेंगल या जो भी स्क्वायर फ्लो चार्ट के अंदर, तो वो आप बना के
उसमें एक-एक एग्ज़ाम्पल लिख दें। जैसे मद्दे मुत्तसिल वाजिब की एग्ज़ाम्पल, मद्दे मुनफ़सिल जायज़ की एक एग्ज़ाम्पल। लेकिन जो आप एग्ज़ाम्पल लिखेंगे ना, तो उसको कलर्ड पेन यूज़ करें। जैसे अब आपने मद्दे मुत्तसिल को बताना है, तो जा जब लिखेंगे, तो अलिफ मद जो है उसको रेड कलर करें, फ़तह को और अलिफ को रेड कलर कर दें और हमज़ा जो है उसको रेड कलर से लिखें। तो जो गूल है उसको रेड कलर यूज़ करें या कोई और कलर जैसे ग्रीन कलर है जो भी आपको पसंद है और बाकी सारे लेटर्स उसको ब्लू या ब्लैक कलर यूज़ करके लिखें ताकि रिवीजन करने भी इजी हो जाए एग्ज़ाम के वक्त। तो इस तरह से आपने सारे एग्ज़ाम्पल लिखने हैं, मद्दे मुनफ़सिल के भी इसी तरह, फिर मद्दे आरिद, मद्दे लीन आरिद, मद्दे लाज़िम और मद्दे लीन लाज़िम के भी लिखने हैं। इस तरह से फ्लो चार्ट तैयार करना है इंशाअल्लाह। कुवैत में जब मैं एक बैच को पढ़ा रही थी, तो मेरे कुछ स्टूडेंट ने मेरे व्हाइट बोर्ड के पिक्चर लिए हुए हैं और वो मैंने अपने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है और दूसरी जगह भी आपको साइट्स पे भी मिलेगा। तो उस पर मैंने लिखा हुआ है कि तजवीद ऑन ग्राउंड क्लास नोट्स करके, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स ने लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दें जो भी उन्होंने काम किए हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ इस तरह बताया हुआ था कि मद के जो कैटेगरी मद तबाई और मद फ़राई है। मद तबाई में इस तरह से हमने बनाया हुआ था कि मद असली आता है, यानी अलिफ मद, वाव मद, या मद, और मद इवद आता है और मद सिला सुगरा और तमकीन। अब ये जो आप नाम देख रहे हैं, कुछ नाम आपको पता है, कुछ नाम शायद आपने पहली बार सुने होंगे। तो ये जो मद्दे सिला सुगरा और तमकीन जो है इंशाल्लाह वो हम एडवांस कोर्स में देखेंगे। लेकिन ये जो सारे मद्दे तबाई हैं, उसके जो स्ट्रेच काउंट है, खींचना है, वो 2 काउंट होता है। तो इस तरह से आप देखें मद तबाई के अलग-अलग नाम आएँगे। मद फ़राई जो होता है वो किसी रीज़न की वजह से होता है। जो ब्रांचेस होते हैं मद फ़राई, फ़रा का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस। तो वो या तो सुकून की वजह से होते हैं या हमज़ा की वजह से हो सकते हैं। अब सुकून की वजह से जो होते हैं, उसमें फ़र्दर कैटेगरी देखें, सुकून आरिद, आर्ज़ी सुकून भी हो सकता है या असली सुकून भी हो सकता है। अगर सुकून आर्ज़ी है तो मद्दे आरिद और मद्दे लीन आरिद जो हम देखें। फिर अगर असली सुकून है तो उसमें मद्दे लाज़िम और मद्दे लीन लाज़िम आता है। अब मैंने यहाँ पर एरो नहीं बनाया हुआ था क्योंकि बोर्ड पे उतना वो पूरा सेट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर मैंने एरो नहीं बनाया हुआ है, इसको मैंने जस्ट इस तरह लिखा हुआ था। फिर इसमें भी मद्दे लाज़िम में भी देखिए मैंने अलग से फ़र्दर कैटेगरी करके लिखा हुआ था और इंशाल्लाह वो हम एडवांस में देखेंगे। कलमी, हरफ़ी, फिर कलमी में भी मुख़फ़्फ़फ़, मुसक्कल, हरफ़ी में भी मुख़फ़्फ़फ़ और मुसक्कल और फिर उसके कितने काउंट खींचने हैं, वो सब इस तरह से हम देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर हमज़ा के सबब होने वाले जो मद होते हैं, जैसे आप यहाँ देखें मद बदल जो है और मद मुत्तसिल वाजिब एक ही कलिमात के अंदर आते हैं। 2 डिफरेंट वर्ड में भी आ सकते हैं। पहला वर्ड जो होता है हुरूफ़ मद पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा वर्ड हमज़ा से शुरू हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, मद मुनफ़सिल जायज़ आएगा, मद सिला कुबरा आएगा। तो उसमें कितने काउंटिंग खींचने हैं वो मुनफ़सिल का देख चुके हैं, लेकिन मद्दे सिला सुगरा का इंशाल्लाह एडवांस में देखेंगे। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, ये मैंने एक साथ लिया हुआ था वहाँ पर। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हम पूरा कवर करेंगे। आपका तो बेसिक लेवल अब चल रहा है, तो बेसिक लेवल में आपके लिए जितना हमने पढ़ा है उतना काफ़ी है इंशाल्लाह। और रिविज़न करते रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।